Look where your partner's at. Look who you work with. Is the industry you are in growing in that particular city? What are the facilities that you will get with respect to your work? Are there people relevant enough to be in your industry which will help you grow in that industry? Hey guys, as most of you know that I've already shifted to Bangalore. In this video, I just wanted to take you through the process of why I shifted to Bangalore, and if you're also looking to shift, be it Bangalore, Delhi, Bombay or any other cities, what are the things that you should keep in your mind before shifting. So let's begin. So if you're already a subscriber, you know that most of my college life has been spent in Delhi. दिल्ली में मैंने कॉलेज कर रखा है एंड कॉलेज के बाद भी 6-7 महीने वही रहता था. लास्ट ईयर अराउंड जनवरी ऑफ 2021 इज़ व्हेन आई शिफ्टेड टू भोपाल विच इज़ माई होम टाउन. एंड मेरी एजेंसी का जो भी काम था, जो भी मैं एजेंसी स्टेल्थ मोड में करता था, उसका 0 to 1 वाला जो फेज था वो पूरे 6 months मैंने भोपाल में फोकस करके करी. दैट वॉज द रीजन वाई आई शिफ्ट टू भोपाल. बट नाउ दैट एजेंसी इज एट अ लेवल, आफ्टर 1 अब मैं 2 पे पहुंच गया हूँ. नाउ आई हैव टू स्केल. And I also wanted to grow as a creator. As a creator, also I've grown in the first half of 2021. Instagram पे, LinkedIn पे, Twitter पे. And now it was time कि मैं कहीं shift हो जाऊँ where I have more relevant people around me. वो again जो average of 5 people around you वाला जो concept होता है, I really believe in that. So that is why I wanted to shift places again. But this time I did not just want to go back to Delhi. I wanted to explore cities. That's why the second half of 2021 was all about traveling. अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 4 महीने में मैंने बहुत ही एग्रेसिवली दिल्ली, बॉम्बे और बैंगलोर के बीच में ट्रैवल किया. आई स्पेंड एटलीस्ट 15 days in each of these cities to gauge and understand what are the pros and what are the cons of each cities, and then accordingly I decided. And after a lot of intense research and travel, I shifted to Bangalore. And before we go deeper into the video, I want you to hit the like button. Click on the subscribe, click on the bell icon because it's absolutely free and I've traveled a lot. I've spent a lot of money in gathering this information. So please subscribe करो, थोड़ा motivation हमें भी दो. Subscribe guys, thank you so much. So what are the factors that you have to keep in your mind before deciding a place to shift? Number 1, look where your partner's at. Look who you work with. Is the industry you are in growing in that particular city? What are the facilities that you will get with respect to your work? Are there people relevant enough to be in your industry which will help you grow in that industry? What are the top places within the locality or within the city where most of the crazy stuff is happening? For example, in Bangalore, it's Indiranagar, Koramangala, HSR. For Bombay, it's either South Bombay side of Worli, Lower Parel or Juhu side. In Delhi, it's just scattered, so there's no one place in Delhi. But usually each cities have their spots, right? So you have to decide, you have to also think about कि कौन सी जगह में within the city पे आपको कहाँ रहना है. And one thing you should absolutely keep out of your mind is the cost associated. बहुत लोग बोलते हैं कि बॉम्बे बहुत महंगा है, बॉम्बे में शिफ्ट होना में बहुत खर्चा होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट माई माइंड सेट इज दैट इफ बॉम्बे इज द सिटी विच अलाइंस विथ योर विजन, विच अलाइंस विथ योर गोल, देन यू शुड पे फॉर इट. दैट इज वाई इट्स हार्ड. यू कांट जस्ट बी लाइक 10 years डाउन द लाइन कि ब्रो आई कुडंट डिड नॉट वांट टू पे 20,000 इन रेंट, इसलिए मैं शिफ्ट नहीं हुआ. बट अगर बॉम्बे चला जाता तो बहुत ग्रोथ हो जाती है एज अ क्रिएटर और एज एक्टर और एज अ मीडिया पर्सन. So don't keep the cost. Don't keep the cost in mind. I did not keep the cost associated at mind at all. So that's one of the most important things that you have to keep in mind. Number 2, what is the rent like? अगर मैं दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर एक एक करके बताऊँ तो दिल्ली में रेंट 3 BHK because I am living in 3 BHK in Bangalore. 3 BHK very posh society like ग्रेटर कैलाश और बसंत कुंज दिल्ली में 50,000 से 60,000 रुपये के आसपास में मिल जाती है. सेम चीज़ बॉम्बे में अगर मैं वर्ली, लोअर बरेली, जुहू साइड जो पॉश इलाके में लूँ तो मुझे 80 to 120 के उससे भी ज़्यादा मिल सकती है. तो बॉम्बे इज़ एक्सपेंसिव, तो आपको 2-3 लोग के साथ तो रहना ही पड़ेगा. एंड सेम प्लेस बैंगलोर में, दिस इज 3 BHK इन इंदिरा नगर, अगैन वन ऑफ द मोस्ट पॉश प्लेसेस इन बैंगलोर. इसकी कॉस्ट अराउंड 52,000 रुपीज़ है. तो कॉस्ट के हिसाब से बॉम्बे इज़ डेफिनेटली मोस्ट एक्सपेंसिव. दिल्ली एंड बैंगलोर के अच्छे इलाके में रहोगे तो मोर और लेस प्राइस में इतना फ़र्क नहीं है. सो प्राइस के टर्म्स में बॉम्बे इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव विदाउट अ डाउट. नंबर 3, क्वालिटी ऑफ पीपल. अगर मैं क्वालिटी ऑफ पीपल की बात करूँ तो बैंगलोर डेफिनेटली टेक्स जस्ट अ लीड, थोड़ी सी लीड इन फ्रंट ऑफ बॉम्बे. नंबर 1 इज़ बैंगलोर, नंबर 2 इज़ बॉम्बे एंड नंबर 3 इज़ दिल्ली. नो ऑफेंस दिल्ली गाइस. अगर आई रिमेंबर वन ऑफ द ट्वीट्स दिव्यांशु ने किया था विच वॉज कि Delhi is low profile, low value. Bombay is high profile, high value.
एंड बैंगलोर इज हाई वैल्यू बट लो प्रोफाइल. सो इट एक्जैक्टली मीन्स कि दिल्ली के लोग बहुत बातें करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बट उनमें वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं होती है. बॉम्बे में लोगों में वैल्यू भी होती है, बहुत कुछ कर भी रखा होता है और वो हल्ला भी बहुत करते हैं. दैट्स वाई द नाइट लाइफ एंड द लाइफ स्टाइल. बैंगलोर कंप्लीटली डिफरेंट केस. बहुत वैल्यू है, आपके सामने एक नॉर्मल शर्ट पैंट में बंदा बैठा होगा, वैगनर चला रहा होगा, बट आपको पता भी नहीं होगा कि उसकी $multi-million की कंपनी है. सो लॉट ऑफ वैल्यू बट लो प्रोफाइल. That's what you'll get in Bangalore. So in terms of quality of people, ढूंढ के निकालोगे तो आपको तीनों जगह में मिल जाएंगे. But because Delhi is so big and it's so massy, it's very difficult to find your tribe. It's very difficult to find a concentrated people जिनके साथ आप vibe कर सकते हो depending आप किस niche में हो. But when it comes to Bombay, बॉम्बे में भी आपको सब मिल जाएंगे. इट्स लिटिल लेस मासी. आप अगर आर्टिस्ट वार्टिस्ट साइड है तो आपके लिए जुगू वाला साइड अलग हो जाता है, चिल करने वाले का अलग साइड हो जाता है, कॉर्पोरेट साइड में आपका वो लोअर परेल वाला साइड हो जाता है. सो देयर इज डिफाइंड सेक्शंस इन बॉम्बे वेयर यू कैन गो एंड लॉट ऑफ हसल. लोग आते ही इट्स देयर अ रीजन व्हाई बॉम्बे इज कॉल्ड सिटी ऑफ ड्रीम्स. बहुत 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 लड़ाई होती है वहाँ पे, बहुत लड़ाई, गुड लड़ाई, आई मीन गुड कॉम्पिटिशन इज देयर. So that's what you get in Bombay. And when it comes to Bangalore, you'll get a very concentrated type of people, highly ambitious, tech-driven, startup, scale, money and all that stuff. It's called Silicon Valley of India for a reason, right? तो आई फील द क्वालिटी ऑफ पीपल के हिसाब से कंसनट्रेटेड, अगर आप शांत और उस टाइप के क्वालिटी लोग ढूंढ रहे हो तो आपको बैंगलोर में बहुत कुछ मिल जाएगा. फ्यूचर ऑफ इंडिया इन लॉट ऑफ वेज इज बीइंग मेड इन बैंगलोर राइट नाउ. सो कंक्लूजन, अगर आप एक इंट्रोवर्ट, हाईली एम्बिशियस इंट्रोवर्ट हो तो बैंगलोर इज अ प्लेस फॉर यू. बहुत एक्सट्रोवर्ट हो, लाइफस्टाइल भी चाहिए, ग्रोथ भी चाहिए, तो बॉम्बे इज अ प्लेस फॉर यू. दिल्ली का आई डोंट रियली हैव अ रीजन टू बी इन राइट नाउ. सो दैट्स थर्ड. लाइफस्टाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं दिल्ली, बॉम्बे और बैंगलोर को करूँ तो आई थिंक बॉम्बे इज़ बाय फार द बेस्ट विद रिस्पेक्ट टू लाइफस्टाइल. आपको वहाँ पे नाइट लाइफ मिलेगी, आपको डे लाइफ मिलेगी, आपको समुद्र मिलेगा, आपको चिल करना है, लोनावला जा सकते हो, नासिक जा सकते हो, आसपास के इलाके बहुत अच्छे हैं. कनेक्टिविटी इज सुपर स्ट्रॉन्ग. देयर ऑल टाइप ऑफ पीपल, देयर इज मीडिया पर्सनैलिटी, देयर इज स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज, एनीथिंग एंड एवरीथिंग. लाइफस्टाइल बहुत ही सॉलिड है बॉम्बे में. इफ यू वांट टू एंजॉय योर लाइफ and if you have decent amount of money then Bombay is your place to be at. दिल्ली की मैं बात करूँ तो दिल्ली इज सेकंड, बैंगलोर डेफिनेटली थर्ड आता है. दिल्ली की ये बात अलग ही है विद रिस्पेक्ट टू इट्स लाइफ स्टाइल, द टाइप ऑफ पीपल, द टाइप ऑफ फूड आउटलेट्स एक्सेट्रा. अगर दिल्ली बंद भी हो जाता है तो गुड़गांव खुला रहता है 12-1 बजे तक के, आराम से आप ड्राइव करके जाओ. नोएडा भी जा सकते हो, बहुत प्यारी सड़कें रहती हैं. नाइट लाइफ वहाँ भी अच्छी, नॉट एज गुड एज बॉम्बे, नॉट एज शिक as Bombay, but it's still a lot of fun. And of course, if you're a budget-friendly person, Delhi is super duper cheap as compared to Bombay. So lifestyle थोड़ी नीचे, but cost के हिसाब से थोड़ा better. So Delhi comes in second, and then third is Bangalore. I personally feel that Bangalore is a little boring when it comes to lifestyle and enjoyment. हाँ, यहाँ पे भी है बहुत कुछ. इंदिरा नगर में यहीं पे 100 फीट रोड है, क्रेड का ऑफिस है. वहाँ पे 12th मेन और 10th मेन में बहुत सारे कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स वगैरह है, बट इट्स स्टिल नॉट एज डाइवर्सिफाइड और इतने ज़्यादा नहीं है, राइट. इट्स वेरी 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 कंसनट्रेटेड एज कम्पेयर टू बॉम्बे और दिल्ली, जहाँ पे हर दूसरे गली में शॉप्स रहती हैं. सो बॉम्बे की नाइट लाइफ इज़ वेरी कंसनट्रेटेड, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो. सो कम लोग हैं और कम कैफेज हैं, कम लाइफ स्टाइल है, थोड़ी लो की प्रोफाइल वाले लोग भी रहते हैं. सो लाइफ स्टाइल के मतलब में बॉम्बे डेफिनेटली, देन सेकंड इज दिल्ली एंड थर्ड इज बैंगलोर. फूड के टर्म्स में आई फील दिल्ली इज़ अनबीटेबल. नॉर्थ इंडियन फूड चाहिए, साउथ इंडियन फूड चाहिए, वेस्टर्न फूड चाहिए, एवरीथिंग एंड एनीथिंग इज अवेलेबल. सीपी है, खान मार्केट है, चांदनी चौक है, सब मिल जाता है. बॉम्बे में आपको नॉर्थ इंडियन थोड़ा खराब सा मिलेगा. इट्स नॉट एज गुड एज ऑफकोर्स दिल्ली. बॉम्बे में यू नॉट गेट अ लॉट ऑफ गुड नॉर्थ इंडियन फूड, लॉट ऑफ वेस्टर्न आउटलेट्स, अमेरिकन डाइनर्स, कैफेज एंड वो सब क्लब्स बहुत मिल जाएंगे, बट प्रॉपर ऑथेंटिक खाना थोड़ा ढूंढना पड़ता है. नॉर्थ इंडियन ऑथेंटिक फूड इन बॉम्बे. इट कम्स टू बैंगलोर, अगेन बैंगलोर इज स्ट्रगल विद रिस्पेक्ट टू फूड. नॉर्थ इंडियन खाना आपको कहीं नहीं मिलेगा अच्छा. 10 जगह जाओगे तो एक जगह नॉर्थ इंडियन खाना अच्छा मिलता है. साउथ इंडियन इज देयर, इवन लॉट ऑफ वेस्टर्न कैफेज सेम जस्ट लाइक बॉम्बे. 100 फीट रोड, कोरमंगला, अच्छे साइड में आपको अच्छे अच्छे कैफेज मिल जाएंगे, क्लब्स मिल जाएंगे, पब्स मिल जाएंगे, बट ऑथेंटिक नॉर्थ इंडियन फूड ढूंढना बैंगलोर में इज टफ. सो फूड के मामले में आई फील Delhi is unbeatable, then there's Bombay and then there's Bangalore. Right, so coming to why I shifted to Bangalore, the core reason is that being an agency owner, a lot of my brands, a lot of the clients that I have, the people I work with are situated in Bangalore. All the Creds and Grows and Small Case and Rain Matter brands, सारे मतलब आधे से ज़्यादा लोग यहीं बने हैं.
And I personally am super duper interested in the startup space, in the VC culture, how money works, how wealth is created and all that. बहुत बहुत अच्छे लोग, बहुत ही concentrated लोग हैं, so that is the reason that I personally shifted to Bangalore. इंदिरा नगर का गुंडा बनना है as Cred का वो ad का analogy देना हो तो मैं. So that's the goal. इंदिरा नगर के बीचों बीच हैं, as COVID slows down, I'll network a lot. The goal is to do intent-based network marketing. Relationship-based networking is what I want to do here. And creator ecosystem में यहाँ पे भी बन रहा है. There are a few of the creators that we manage that are in Bangalore itself. Sharon is shifting here. Rishi is here. Simran is here. Anushka is shifting here. So a lot of creator-oriented growth is also here. So I feel that Bangalore is the best place for me right now. That's why I shifted here. And if I speak from a non-media agency owner perspective or a non-creator perspective, Bangalore has the most potential right now. परसेंटेज ग्रोथ के टर्म्स में बोलो तो ये सिटी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है. मोस्ट अमाउंट ऑफ ग्रोथ, मोस्ट अमाउंट ऑफ VC फंडिंग, मोस्ट अमाउंट ऑफ स्टार्टअप्स, मोस्ट अमाउंट ऑफ यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स which are coming or are coming in the future will be from Bangalore. Concentrated smart लोग की ऑडियंस है. एवरेज ऑफ 5 वाला कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा लगता है बैंगलोर में. इट्स वेरी कनेक्टेड टू बॉम्बे एंड मिड इंडिया एज वेल. इट्स स्मॉल, इट्स कंसंट्रेटेड, लॉट ऑफ ग्रोथ पोटेंशियल, वेरी कनेक्टेड, good place to be at. That's why I am here. If you are planning to move out, make sure you do your own due diligence as well. Don't just rely on what I just said. My bias was from a media and a creator and a startup perspective. अगर आप किसी और niche में हो और किसी profession में तो definitely अपना due diligence अलग से करना. This was my opinions. If you have any particular questions with respect to shifting, do hit in the comment section. I'll help personally if I know the answer to. और भी कोई वीडियो बनानी है तो उसका भी कमेंट कर दो. हर हफ्ते ट्राई करेंगे कि 1 से 2 वीडियो आ जाए. That's it for this video guys. Hit the like button, hit the subscribe button, click on the bell icon, share this with friends. Thank you so much.